Hi guys, today we have with us Hidesha and ma'am, we want to talk about your story, your CET journey कैसे हुआ, क्या किया, 6 महीने का गैप कैसे सहा, क्योंकि अभी मुझे वो चीज दोबारा शुरू हो गया सर सीईटी कब होगा. मैं क्लास के बीच में हूँ एंड यू बी सरप्राइज टू सी आई जस्ट शो यू व्हाट आई वाज टीचिंग टुडे. मैं ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, सीरीज में ऑड मैन आउट, और बीच में 2-3 लोग कॉपी पेस्ट पे कॉपी, सर सीईटी कब होगा, सीईटी कब होगा, सीईटी कब होगा. ठीक है, तो how to handle the stress and all this thing. So first let us start with your scores and what was your background. So sir, I'm BSc Biotechnology graduate, fresher. I graduated in 2021, and then after I gave this year CET 2020 wala. I was also I gave CAT. I also gave it in 2020 and now also in 2021. I was not planning for CAT, but I still gave it. I say. And CET में I got 98.89 percentile, and I converted Signum from that. Okay, and how many months of preparation for the CET point of view? I 4 महीना पूरा लगाया होगा. तो अपने फिर we have the chat as well. We have students who are going to ask you question. पहले मैं अपने question सारे complete कर देता हूँ. Then guys, you can open up the queries for that. Do you remember your CAT की percentile? If you don't mind telling us, CAT में कितना आया? जब 2020 में दिया था ना, तभी 72 परसेंटाइल था. I deliberately scored low. Then मुझे बाहर नहीं जा रहा था IIMs के लिए, इसलिए. वाह. नहीं वो होता यार, ये महाराष्ट्र वालों की ये प्रॉब्लम है. एंड वेयर यू फ्रॉम? मुंबई. मुंबई वालों की, इन मुंबई वालों का ना कैट दे रहा हूँ, लेकिन मेरी उंगली तो बस सीटी की तरफ ही है. एंड ट्रस्ट पेरेंट्स वर लाइक, अरे आईएम्स कितना अच्छा है, आईएम्स लेंगे, कैट का दे दो, ऐसे ही दे, कुछ नहीं देखेंगे, बस कन्वर्ट होगा तो देखेंगे. अब ऐसा कैसे होता है क्या? कभी कन्वर्ट होगा तो कोई ऐसा छोड़ता है क्या कैट? तो आई वाज लाइक, नहीं, कैट में स्कोर ही नहीं करते तो फिर जाना ही नहीं पड़ेगा. ट्रू. एंड हाउ वाज योर लास्ट 3 months लुकिंग लाइक? लास्ट 3-4 months आपने सीईटी का तैयारी स्टार्ट कैसे किया और फिर कैसे गए आगे, कैसे बढ़े? सीईटी का तो मैंने मोस्टली पूरा मॉक्स पे ही फोकस किया था. मेरे पास बुक्स कुछ ज्यादा नहीं था, बुक्स नहीं था. I was like, I was not preparing so hard. Like, this is the thing, yaar. Everybody thinks that they had to prepare for like 8 hours, 10 hours and all. I never prepared for that many time, that much time. I only used to give, firstly, so I used to give mocks only. Just and analyze for 1 hour or something like that. But whenever I used to give mocks, I was like so dedicated towards it. And other than that, I didn't do anything. Total, any idea how many mocks you gave? I gave about 60. 16 mocks. 65. 65 टाइम था ना यार, वो इतना घर बैठे. ये फायदा हुआ यार, ये तुम्हारे बैच को ना, कि टाइम बहुत मिला आपको पढ़ने के लिए. अरे मेरा मॉक्स ही खत्म हो जाता था. आई वाज लाइक, अभी ये मॉक्स थे, आई यूज्ड टू गिव देम पहले तो 2-3 दिन में एक बार और एक वीक में एक बार. फिर लास्ट के मंथ में तो आई यूज्ड टू गिव रेगुलरली 1 मॉक. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यार इसका भी मॉक खत्म हो गया, ये वाले भी मॉक्स खत्म हो गए, ये वाले भी खत्म हो गए, कोई मॉक्स ही नहीं बचा देने को. एंड आई वाज नॉट इवन हैविंग बुक्स. I didn't know what to study further there. Right. So we have this question, how your day used to look like? आप दिन में कैसे पढ़ते थे? Okay. अभी ऐसा आंसर तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, लेकिन I never used to have any timetable actually. As I say, I used to just give mock. I was very dedicated towards it. when मुझे जिस दिन मुझे mock देना, and that also I was not planned about that. Like, whenever I feel like, oh okay, चलो आज mock दे देते, छोड़, आज देंगे mock, देखेंगे क्या हो रहा है, क्या स्कोर आ रहा है. तभी I used to give mock any day, like in afternoon or evening or any day, any time, any point of time, and then after that analyze it for an hour or so. That's what I didn't do much. Right. Mock में स्कोर आपका कुछ याद है? मॉक्स में
The first mocks, in the first mock, I scored, I guess, 80, 90 something. And then first 10 mocks में I was 90 to 100, in the range of 90 to 100 first 10 mocks में. Then उसके बाद I was stuck from 100 to 110 for so long. I was there for so long. Like कभी क्वांट में ज्यादा आता था तो कभी इसमें कम हो जाता, LR में कम हो जाता था, इसमें ऐसा एक एक सेक्शन में ऐसा. एब्स्ट्रैक्ट मेरा पहले से फिक्स था, एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा अच्छा आता था. एब्स्ट्रैक्ट वाज अबाउट 20 ऑलवेज. बट बाकी तीनों का ऐसा कभी क्वांट में अच्छा आएगा तो कभी VRC में अच्छा आएगा, कोई ऐसा एक तो कोई ये देता था. और 110 तक था पहले, फिर उसके बाद 120 तक गया, और लास्ट में 125 और समथिंग ऐसा. ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे तो लगता है हुआ है. हुआ नॉर्मलाइजेशन. आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर स्कोर, आई गेस. जब एग्जाम से मैं आई तभी आई वाज लाइक मेरा तो जेबी हो जाएगा, मुझे तो बहुत अच्छा गया एग्जाम, मेरा बहुत अच्छा गया, एकदम परफेक्ट प्रॉपर सब कुछ. हाँ, मेरा तो ये तो हो ही जाएगा, जेबी हो ही जाएगा, देखेंगे. तभी जब स्कोर आया तो आई वाज शॉक. आई गेस नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है. Nordin हुआ है. Can you elaborate on your mock analysis part? How you used to analyze the mock? Okay. So mock के टाइम अभी अगर मैंने मॉक देना है ना तो मैं सुबह से प्रिपेयर करती थी कि हाँ बाबा कि अभी दोपहर को मुझे देना है ना मॉक, तो ये सेक्शन में इतना स्कोर करना है, ये सेक्शन में ऐसा सेक्शन वाइज मेरा फिक्स था. अभी जैसा मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट में तो मेरा 20+ आ रहा था स्टार्टिंग से, तो अभी क्वांट का 35 का टारगेट था, VRC का 35 का, एंड LR का 60 का टारगेट था. तो आई वाज लाइक हाँ ये वाला इतना करना है, ये वाला पहले से प्रिपरेशन था कि आज इतना पजल सॉल्व करना है, इतना इतना करना है, ये करना है. और देन मॉक के टाइम वो तो मैं पूरा परफेक्टली देती थी अपना पूरा 100%. और वो हो जाने के बाद थोड़ा सा तो ब्रेक लेती थी आधी घंटे के बाद, और उसके बाद फिर एनालाइज करना था ना, तो तभी आई वाज हर एक क्वेश्चन को देखती थी. एवरी क्वेश्चन आई यूज्ड टू लुक एट and answer also why this is getting wrong, और मेरा method क्या था. Like in the syllogism part, I never used to get many right. I was not liking that section at all, but one day it just clicked. I don't know how, just click किया, अरे हाँ ये वाला मेथड यूज करूंगी तो ये वाले मेरे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे. So I took some of the example from Google सेक्शनल टेस्ट से वगैरह. तो ऐसा मेरा मैं क्या करती थी कि एक एक क्वेश्चन पे फोकस करती थी कि अरे हाँ ये टाइप का जो क्वेश्चन है तो ये मेरा हमेशा रॉन्ग आ रहा है, मॉक्स में हमेशा यही रॉन्ग हो जाता है. तो वो सेक्शन का फिर मैं 2-4 वीडियोस देखूंगी, अलग अलग कैसे टाइप सॉल्व कर सकते हैं वाला क्वेश्चन ऐसा देखती थी. फिर मेरा वाला जो मेथड है मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो देखूंगी. फिर उसके बाद थोड़ा सा गूगल पे से क्वेश्चंस लेने का, उठाने का, सेक्शनल टेस्ट का, और उसका थोड़ा सा 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का. फिर ऐसा एक एक क्वेश्चन टाइप मैंने ये कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपर. सुपर्ब. एक मिनट ना. What is your category? Which category belong to? OBC कैटेगरी. OBC. तो OBC का कट ऑफ कुछ आपको आइडिया है कि जेबी सिडनम में कितना कट ऑफ गया इस बार OBC का? आई गेस 127 था जेबी का. जेबी 1 मैं इसलिए ना जो OBC वाले हैं ना उनको टारगेट देता हूँ 130 का. योर टारगेट हैव टू बी 130 फॉर OBC. And for I used to follow your videos only. अरे obviously ना public कहती how can you say target exam easy अगर tough. अरे exam कैसा है जाने दो, but when you are studying you need a target. I like exactly. I can say that because in mocks also I used to shortfall 5 to 7 marks from your target. Like you used to give 128 का target ना, OBC का 130 का something. 130. I always used to get, like I said, 125, 123 or something. And in the exam also the constant different it was different. वो नहीं cover हुआ last तक. इवन तो मुझे लगा कि एग्जाम मेरा अच्छा गया, लेकिन फिर वो जो पहले से जो डिफरेंस आ रहा था ना 5-7 मार्क्स का, वो फिर नहीं लास्ट में कवर हुआ वो भी. तो टारगेट वाज मतलब आपका एकदम अप्रोप्रिएट रहता है प्रॉपर. हाँ, तो जो इस बार भी जो लेवल भी चेंज हो जाएगा ना तो भी फिर आपका उस हिसाब से फिर आपका आएगा, बराबर हो जाएगा वो भी. Right, true. So इस बार those who are preparing, so if you are from the OBC EWS category, target EWS का भी कड़ा भी ऊपर जा रहा है.
ओबीसी का टारगेट शुड बी 130 एंड SC ST का टारगेट, SC ST NT टारगेट इज 125. कट ऑफ चाहे 121 रहेगा, 122 रहेगा, बट टारगेट हैव टू बी थोड़ा सा हाई. हाँ, that's like you gave 130 का टारगेट ना. I got my breakout like that. I was हाँ, एब्स्ट्रैक्ट में 20 स्कोर करना है, इसमें 35 VRC एंड कॉन्ट में. मेरा कॉन्ट वैसे थोड़ा इतना अच्छा नहीं था पहले, तो मुझे 15 मार्क्स आता था कुछ कॉन्ट में. मैंने बहुत सारा मेहनत करके उसको लिया था, 25-27 तक आया था. तो कॉन्ट में ही मेरा शॉर्टफॉल हो रहा था लास्ट तक. कॉन्ट में ही मेरा बहुत जरा सा प्रॉब्लम था. एंड LR का वाज लाइक 60, तो 140 हो जाता है. तो उतना अगर रखा तो 130 तक आ जाएगा, ऐसा मेरा टारगेट था पहले से. तो क्वांट में ही थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, बाकी सब तो हो रहा था. सुपर्ब सुपर्ब. ठीक है, परफेक्ट. सो थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. होपफुली यू ज्वाइन सिडनम कॉलेज, वहां जाके तुम अच्छा करो. एंड ऑल द बेस्ट. I wanted to tell one thing also. Like in the CAT also, as I messaged you, CAT का रिजल्ट भी आया. CAT was not planned at all. और लेकिन ना मुझे एक बड़ा अच्छा उसमें एक्सपीरियंस मिला CAT के एग्जाम के टाइम. लाइक आई से आई वाज नॉट प्लानिंग फॉर CAT एट ऑल. सो जब मैं एग्जाम देने गई ना, तो लाइक द माइंडसेट of you when you are giving the exam is very important, I think. जब मैं लास्ट ईयर एग्जाम देने गई थी, तो आई वॉज लाइक कि अरे हाँ, VRC का 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, इसका VRC का 10 क्वेश्चन, इसका 5 क्वेश्चन, इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा टारगेट लेके गई थी. तो आई वॉज लाइक अगर मुझे नहीं भी आ रहे तो आई यूज टू स्टक एट द क्वेश्चन. यार इतना 7 ही हुआ, इतना ही हुआ, नहीं हो गया, ये क्या करेंगे. अभी दिस ईयर व्हेन आई गेव कैट, आई वाज लाइक इन द फ्लो, आई वाज गोइंग इन द फ्लो. लाइक हाँ, ये आ रहा है तो ये सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है तो ये सॉल्व करेंगे. ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था ना, बिल्कुल एकदम कि क्लियर करना है कुछ ऐसा. तो इट लाइक प्रूव्स आपका माइंडसेट जो है एग्जाम के टाइम पे. अगर आप स्ट्रेस में हो ना, तो उसका बहुत प्रॉब्लम होता है एग्जाम के टाइम पे. अगर आप प्रॉपर, अभी मेरा तो क्वांट में इतना खराब है, क्वांट तो मुझे कुछ आता भी नहीं. लास्ट ईयर भी क्वांट में ही मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये टाइम भी क्वांट में जब किया ना मैंने, तो फिर मुझे कम क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन फिर भी आई वाज लाइक सॉल्विंग. जो आ रहा है, जो आ रहा है अभी, जितना आ रहा है, नहीं है ना, जो नहीं आएगा तो उसका कुछ सोच के कुछ कर नहीं सकते. अभी जो आ रहा है वो तो सॉल्व कर सकते हैं वो टाइम पे. तो फिर अगर ऐसा प्रॉपर माइंडसेट लेके जाएंगे ना एग्जाम में, तो वो भी फिर ऐसा उसका भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है. तो अभी कैट में भी मुझे 94.37 परसेंटाइल आया. अभी मुझे तो नहीं जाना था IIM के लिए, लेकिन अभी देखेंगे. परफेक्ट. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. या, बाय 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 बाय. बाय. एक मिनट. हाँ, नहीं हो गया, सॉरी. थैंक यू.